Good evening, all of you. Today's topic we will discuss that the number of atom in a unit cell, and we know that unit cell repeating unit in a crystal lattice. So that the today's topic is the relationship between nearest neighbor distance d, जिसको consider कर रहा हूँ as the unit cell A है, radius of the atom r. We have three types of that. Was the first one is the simple cubic लेके चल रहा हूँ, that is the simple cubic unit cell. Second one, that is the face centered unit cell. We can say that हर face के, इसमें simple cubic में कॉर्नर पे रहता है एटम, face centered में हर face के सेंटर में रहेगा. इन दिस पे that is the चारों फेसेस पे हो गया. ये हमारा बैक फेस, ये फ्रंट फेस के, राइट. एंड दिस वन इज द बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल. बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में वी कैन से दैट बॉडी के सेंटर में एटम को हम प्लेस कर देते हैं अपना, राइट. सो दैट अब कैलकुलेशन वाला पार्ट वी कैन से दैट कि व्हाट इज द रिलेशन nearest neighbor distance d. So we can say that is the लेके चल रहा हूँ, that is the A, that is the B, this one is the C. So that is the, consider that and D number of units. So that इसका nearest neighbor कौन होगा? This one and this one and this one. So that इस केस में in the case of simple cubic, what is the nearest neighbor distance D? कहता है कि जो भी आपकी edge length है, that is the edge length of this cube. So in the case of simple cubic, that is the nearest neighbor distance D. दोनों के बीच में distance AB is equal to the edge length A है और A is equal to D. इसका central point, इसका central point, that is the D, right? And second one, edge of the unit cell A and radius. रेडियस अगर लेके चले अपना आधा एटम ये आया, आधा एटम ये आया, सो दैट जब भी हमें रेडियस निकालना होगा तो जो भी हम डिस्टेंस निकालते हैं उसका हमेशा हम 2 डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड उसका हाफ कर देते हैं, डिवाइड बाय 2. सो दैट आई एम कंसीडर दैट एज लेंथ इज द 100 पिकोमीटर. And then what is the nearest neighbor distance D? D is equal to also 100 meter. And what is the radius? Radius becomes half the D. तो उसका जो भी radius था 100 था, edge length 100 थी, distance D 100 था, तो R कितना हो जाएगा उसका half? It becomes 50 picometer. Right? So radius is the half of that is the story for the simple cubic. ये कहानी किसके लिए भी? सिंपल क्यूबिक के लिए. अब बात आती है फेस सेंटर्ड के लिए. ओके, अब इसका वी नो दैट इन द केस ऑफ फेस सेंटर्ड इसका दिस एटम इज द नेबर तो है, पर नियरेस्ट नेबर कौन सा हुआ? दिस वन. सो दैट मुझे अब ये डिस्टेंस निकालना था. ये डिस्टेंस निकालने के लिए मैंने इसको मीट कर दिया, आगे इसको आगे मीट कर दिया मैंने अपना. देन वी हैव अ राइट एंगल ट्रायंगल दैट इज द ए बी सी. ठीक है, तो मैं पूरा AC वैल्यू कैलकुलेट करूंगा, तो उसका हाफ करूंगा, देन वी कैन कैलकुलेट द D और उसका भी फर्दर हाफ करता हूं, देन वी कैन कैलकुलेट द R. तो ओके, आई एम टेकिंग इन द केस ऑफ फेस सेंटर्ड को शॉर्ट फॉर्म में वी कैन से मेंशन करते हैं, FCC मेंशन करते हैं. इन द केस ऑफ इन FCC अरेंजमेंट व्हाट इज द इन राइट ट्रायंगल वी कैन से दैट ABC. पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूं, दैट इज द AB AC square that is equal to the AB square plus BC square, right? Then we know that is the square का जो हम डायग्राम निकालते हैं, AC जो आएगा मेरे पास AC square that is equal to A का square plus A square. We can say that is AC is equal to root 2A. We know that math में we have done that. तो AC is equal to root 2 आया, that is the whole. और अगर मुझे D निकालना है, D is equal to the divide by AC को 2 से डिवाइड करता हूँ, root 2A divide by 2. You can say that, ठीक है. And that is root 2A, that is the AC. उसका half किया, then becomes we can say that is the root 2A divided by 2. That gives us the D. और रेशनलाइज करता हूँ, we can say that we know that what is that 2 root 2. That is the A. So A by root 2 is the D, and what is the R? That is A by 2 root 2. This one. Okay. This one is the radius for the FCC, and I am moving to the BCC, body centered में. अब मुझे क्या निकालना है this way? That is the we can say that this is the A
and this one is the B, this one is C, and this one is D, right? And this one, that is the ये वाला distance, ये distance, ये दोनों का distance निकालना है मुझे अपना, तो अब मैं right triangle लेता हूँ, that is the ACD, fine, in right triangle ABC, and हमने कैलकुलेट करना है अपने AD square, that is equal to the AC square plus CD square, and we know that अभी निकाला था √2a निकाला था, एज लेंथ मेरे पास a है, गिवन है, दैट इज द एज लेंथ जो थी वो मेरे पास a पिकोमीटर ही है, ओके, सो दैट पुट द वैल्यू हियर, AC अभी निकाला गया, दैट इज √2a, CD निकाला, दैट इज द a square, वी कैन से दैट, so that is the 3a square and AD is equal to √3a, और डिस्टेंस निकालना है तो दैट इज d इज इक्वल टू √3a डिवाइड बाय 2, और r रेडियस कितना हो जाएगा उसका भी हाफ, तो √3/4 a, दैट इज द r रेडियस, एंड दिस वन इज द नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस d. मेन थिंग इज दैट वी, हमारे पास जो रहता है क्वेश्चन जो हमारे पास पूछे जाएंगे वो विद रिस्पेक्ट टू द रेडियस निकालने के लिए पूछे जाएंगे, दिस वन इज द डिस्प्लेसमेंट दैट दिस वन एंड दिस वन, दैट इज द फार्मूला जिसके कंसर्न हमारे सिलेबस में क्वेश्चन पुट किए जाते हैं, ठीक है. डायरेक्टली हमें नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस दे रखा होगा, एज लेंथ दे रखी होगी, कैलकुलेट द रेडियस निकाल दीजिए, डायरेक्टली अप्लाई द फार्मूला फॉर द एफसीसी, फॉर द सिंपल क्यूबिक, फॉर द बॉडी सेंटर्ड बीसीसी जो वी कैन कंसीडर करते हैं अपना, तो वी हैव अ 3 यूनिट्स सिंपल क्यूबिक, तो वी कैन अप्लाई दैट फार्मूला, ओके, एंड दैट इज द स्टोरी जिसके बिहाफ पर हमसे क्वेश्चन पुट करते हैं अपना. लास्ट टाइम जो एक बात बताई गई थी जिसके रिस्पेक्ट क्वेश्चन भी पुट करते हैं कि कॉर्नर पे कंट्रीब्यूशन इन द केस ऑफ, अगर सिंगल क्यूबिक लेके चलता हूं, कॉर्नर पे कंट्रीब्यूशन 1/8 एंड फेसेस पे कंट्रीब्यूशन 1/2, एंड इन द केस ऑफ बॉडी सेंटर में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होती. बाय चांस न्यूमेरिकल में एक न्यूमेरिकल भी है एनसीईआरटी में, अगर एचपी एटम है, एचपी कंट्रीब्यूशन, एचपी एटम का कितना पार्ट पड़ा होगा, इट बिकम्स 1/4, तो विद रिस्पेक्ट इसके वजह से क्वेश्चन पुट किए जाते हैं, तो दैट इज अ लिटिल बिट स्टोरी वी कैन कंसर्निंग दैट, ओके. एंड आफ्टर दैट वी कैन से दैट इसमें इतना करने के बाद आता है हमारे पास पैकिंग, कि जब एटम्स पैक होते हैं हमारे पास तो अरेंजमेंट नेचुरल बात है कि इस 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन एग्जिस्टेंस 3 डायमेंशन में है, नो डाउट, बट फर्स्टली वी विल स्टार्ट फ्रॉम द 1 डायमेंशन. इन द केस ऑफ 1 डायमेंशन वी कैन से दैट इज द स्टोरी जिसके रिस्पेक्ट में न्यूमेरिकल्स निकालेंगे अपना, एंड आफ्टर दैट कि 1 डायमेंशन के बीच में अरेंजमेंट जो चलेगा हमारे पास 1 डायमेंशन में, मैंने बताया स्पेशली कि पैकिंग जो लेके चलते हैं. नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द पैकिंग, व्हाट वाज दैट, एंड पैकिंग जो लेके चला अपना, पैकिंग के अंदर इन द केस ऑफ हमने पहुंचना है 3 डायमेंशन तक, फर्स्टली स्टार्ट फ्रॉम द 1 डायमेंशन. 1 डायमेंशन में कंसीडर किया जस्ट सिंगल रो, आपके एटम अटैच है, सिंगल रो फॉर्म हो रही है, तो दैट इज द 1 डायमेंशन. तो इसमें एक डेफिनेशन फिर आती है हमारे पास, कोऑर्डिनेशन नंबर. व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर, ओके, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर, नंबर ऑफ ए स्फीयर गिवन है, इसको मैं कहता हूं इसको कितने स्फीयर टच कर रहे हैं, तो कैन ऑब्जर्व दैट 1 2, तो नंबर ऑफ स्फीयर टचिंग टू अ गिवन स्फीयर, एक स्फीयर को जितने स्फीयर टच करते हैं दैट इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेशन नंबर. सो दैट इन दिस केस द 1 डायमेंशन, इन द केस ऑफ 1 डायमेंशन, ठीक है, 1 डायमेंशन के अंदर जो कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे पास कितना है, जस्ट 2 कोऑर्डिनेशन नंबर आर देयर, okay, and then move to the 2 dimension. 2 dimension में we have a 2 dimensions के अंदर हमारे पास again 2 arrangement are there, that is the square close stacking and hexagonal close stacking arrangement. What is the 2 dimension में मैंने कहा square close stacking and hexagonal. Hexagonal. What is the square close stacking? We can say that is the one, ये लेके चल रहा हूँ, ये स्क्वायर में जैसी फर्स्ट रो है वैसे ही सेकंड रो, वैसे ही थर्ड रो प्लेस कर दी गई, तो सो दैट मैं सभी के अगर सेंटर को बीट करता हूँ, we can say that, ठीक है ना, this one we can observe that एक स्क्वायर की फॉर्मेशन होती है जी हमारे को, that is called the square close stacking, right? हाँ जी. एंड हेक्सागोनल के अंदर फर्स्ट रो जो प्लेस की गई है हमारी, सेकेंड रो उसके डिप्रेशन के अंदर, थर्ड रो उसके डिप्रेशन के अंदर,
दैट अरेंजमेंट। और इसमें अगर मैं इनके सेंटर पॉइंट को मीट करता हूँ दिस वन दैट इज द इन दिस वे, तो अगर सभी को सेंटर पॉइंट को मीट करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, हेक्सागन की फॉर्मेशन मिलती है, तो दैट इज द HCP, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। और इसमें अगर मैं सभी के इन दिस वे इस वाला जो लेके चला अपना, तो इसमें इसमें सेंटर पे तो स्टेयर की फॉर्मेशन लेके चल रहा हूँ। अगर हम कोऑर्डिनेशन इसके नंबर के रिस्पेक्ट लेके चलेंगे तो दैट इज द दिस इज द गिवन स्फीयर एंड व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर, है ना। इसमें कितने से टच कर रहे हैं हमारे पास, अगर सेंटर लेके चलता हूँ दिस वन, ये दिस एंड दिस वी कैन से दैट एक स्केयर की फॉर्मेशन है, दैट इज 1 2 3 4 एज कंपेयर टू in the case of this इसको स्फीयर को किस वे टच कर रहे हैं, that is 1 2 3 4 5 6, so that in the case of HCP that is the scale close packing, in the case of HCP में coordination number 6 रहता है, as compared to scale close packing में coordination number हमारे पास कितना रहेगा, 4 रहेगा, because given sphere को कितनी स्फीयर टच कर रहे हैं, 4, as compared to hexagon में कितनी स्फीयर टच कर रहे हैं, 6, तो what is the coordination number case of HCP, that is 6, in the case of scale close packing is 4. Okay, and next word we can say that ki which one is the close, we know that in the case of solid हमेशा atoms and molecules हमारे पास क्या होते हैं, compactly closely packed रहते हैं, so that closely packed रहेंगे तो which one is the compactly packed, that is जैसे भी इसमें space हो, we can say that जो खाली space है, जो vacant space है वो बहुत कम है as compared to in the case of scale close packing, yes, number ये जो vacant space नजर आ रहा है that is called void, hole, site, interstitial space, all these are the same thing, so that इसमें वो स्पेस ज्यादा है, इसमें कम है, तो which means compactly packed this one। अगर वो HCP compactly packed है तो mostly solid always follow the HCP arrangement, so that is the HCP arrangement जिसको mostly solid follow करते हैं जी हमारे पास। हाँ जी, तो 3D डायमेंशन में अगर हम स्टडी भी करते हैं स्केल का भी हमें 3D स्ट्रक्चर मिलते हैं, बट मोस्टली जो स्ट्रक्चर मिलते हैं वो 3D के अंदर हमें HCP को फॉलो करते हैं। तो HCP में 3 डायमेंशन में अगर मूव करता हूँ 3D का थोड़ा टिपिकल वन, सो दैट आप थोड़ी सी इमेजिनेशन लेके चलना पड़ेगा हमें अपना। तो इन द केस ऑफ 3 डायमेंशन आई एम टेकिंग द HCP 3 डायमेंशन अरेंजमेंट, ठीक है। तो इतना फर्स्ट लेयर तो हमें विजिबल हो रही है, दिस वे ये प्लेयर जो हमने किया दैट इज द फर्स्ट लेयर, ठीक है। तो अगेन इसमें यहाँ पे 2 एलिमेंट मिलते हैं, दैट इज AB ABC ABC एंड 2 एलिमेंट AB एंड ABC। व्हाट वाज दैट, तो अगेन HCP के मैंने 2 फॉर्म बताए, एक हमारे पास AB अरेंजमेंट होगा, एक हमारे पास ABC अरेंजमेंट होगा। इतनी बात तो क्लियर हो गई दोनों पिक्चर से, दैट इज 1 2 1 2 एंड 1 2 3 1 2 3 एंड द HCP एंड दैट इज अनदर नेम ऑफ ABC CCP cubic close packing and FCC phase centered cubic arrangement, all these are the same thing, okay, so that इन द केस दोनों में एक बात तो ऑब्जर्व, दोनों के अंदर जो AB फर्स्ट एंड सेकंड लेयर, अब यहाँ पर तो हमने सिंपल एक ही लेयर में लेके चलते 2 डायमेंशन, यहाँ पर इन द केस ऑफ HCP में 3 लेयर्स की कहानी चलेगी, राइट, मतलब लेयर बाय चलेगा, 3D के अंदर एलिमेंट चलेगा, तो दैट इज द फर्स्ट लेयर जिसको ब्लैक से मेंशन कर रहा हूँ, दैट इज द फर्स्ट A लेयर। हाँ जी, तो इस लेयर में मैंने पैकिंग कर दी अपने फ्लोर की। हाँ जी, उसके ऊपर मैं क्या करता हूँ, दिस में दैट इज द एक ये अपर जो वाइड्स हैं दैट इज कोड A, दिस वन इज कोड A वाइड, और नीचे वाली जो वाइड्स जिसको मैं ग्रीन मार्कर से मेंशन कर रहा हूँ दैट इज द वाइड B, ओके, एंड अगेन दैट इज द अपर वन इज द A, दिस वन जिसको ब्लैक से मेंशन कर रहा हूँ दैट इज द A, एंड नीचे वाला दिस वन दैट इज द B वाइड, राइट। अब डिपेंड करता है कि वी हैव 2 टाइप्स ऑफ वाइड, आप किस वाइड की फिलिंग करते हो, तो वो अब हमारे हाथ में है। अगर हम A वाइड की फिलिंग करेंगे पूरी लेयर के अंदर तो ऑटोमेटिकली A वाइड फिल होंगे, अगर B की फिलिंग करें तो B वाइड फिल होंगे, सो दैट मैं टेकिंग लेके चल रहा हूं, मैं B को फिल कर रहा हूं। तो अरेंजमेंट अगर मैं यहाँ पर इस जगह सेकंड लेयर में रखा मैंने अपना B, दैट इज की जो मेरे पास नया इन दिस वे दैट इज द B वाइड जो था यहाँ पर इन दिस वे, I am taking that the 3D picture a little bit you can considering that, so that is the B layer, that is the B layer, ठीक है, कि जो मेरे पास वाइड बना है दिस वन उसके ऊपर रख दिया गया, एंड तो दोनों के अंदर AB जो था, अब थर्ड लेयर दैट विल बी डिफाइन कि आपका AB होगा या ABC होगा, सो दैट थर्ड लेयर। अगर मैं अब जो इन दिस में 3 बॉल्स जो मैंने प्लेस की, 3 एटम जो प्लेस की सेकंड लेयर में, अब इससे एक नया वाइड यहाँ बन रहा है दिस वन। अगर मैं क्या करता हूँ इस वाइड की फिल करने के लिए एटम प्लेस करता हूँ तो उसकी पिक्चर बिल्कुल जो होगी वो फर्स्ट लेयर जैसी होगी, तो अरेंजमेंट होगा जी मेरे पास AB। और अगर वो कहता है कि आपका दिस वन जो पुराने ये दिस वन दैट इज द वाइड जो बच गया हमारे पास, दिस वाइड इज कॉल्ड दिस वन, राइट। तो अगर मैं इस वाइड पे कंसीडर करता हूँ अपना, तो अगर इसको वाइड पे एटम रखता हूँ तो वो बिल्कुल अलग होगा, दैट इट बिकम्स C,
दैट इट बिकम्स सी, वो बिल्कुल टोटली डिफरेंट लेयर होगी। और उसके रिस्पेक्ट लेके चलूं तो अरेंजमेंट 4 जो लेयर दैट इज रिजेंबल टू द फर्स्ट वन। तो बिहाफ ऑफ दिस वी कैन से दैट इज द ABAB एंड ABC अरेंजमेंट। ABAB अरेंजमेंट को अगेन HCP बोला गया एंड ABC को दैट इज कॉल्ड द CCP, दैट इज क्यूबिक क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट एंड और another name कैसे दैट इज कॉल्ड FCC आल्सो, face centered cubic arrangement. Okay, in the case of coordination number is 2, in the case of coordination number 6, but in the case of ABAB, whatever ABC, what is the coordination number? What coordination number in the case of HCP is 12 and CCP is also 12. How can you use that? 6 तो हमें visible है। अब जब इसके ऊपर मैं लेयर प्लेस करता हूँ, इसके ऊपर जब एटम आएंगे तो एक बॉल के ऊपर भी 3 एटम्स आ रहे हैं, 3 एटम ऊपर 3 एटम उसके नीचे। अब चाहे वो ABAB हो चाहे ABC हो, अरेंजमेंट दैट विल बी द रिमेन सेम, सो दैट वी कैन से दैट कि दोनों के केस में कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे पास कितना रहता है, 12 ही रहता है। इसको एक तो ये एक्सप्लेनेशन हुई। अनदर वे से वी कैन गिव अनदर, वी कैन अगेन एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ वायर्स। अगेन हमारे पास इन द केस ऑफ वायर जो लेके चल रहा हूं, वायर बोल दीजिए, होल बोल दीजिए, इंटरस्टिशियल स्पेस बोल दीजिए, साइड बोल दीजिए, ऑल द सेम थिंग, ठीक है। खालीपन जिसको हम बोलते हैं, दिस वन दैट इज अ वायर। अब वो कहता है कि वायर को 2 टाइप्स के रहते हैं हमारे पास स्पेशली, एक होता है टेट्राहेड्रल वायर, एक होता है हमारे पास ऑक्टाहेड्रल वायर, ठीक है। टेट्राहेड्रल वायर तो सिंपल अपना 1 बॉल के ये 3 बॉल्स प्लेस कर रहा हूं, उसके ऊपर एक बॉल प्लेस कर दी, सिंपल 3 बॉल्स टेनिस के भी व्हाटएवर यू नो दैट टेनिस बॉल्स आर देयर, तो 3 बॉल्स के ऊपर एक बॉल प्लेस करता हूं। दिस शेप रिजेंबल टू द टेट्राहेड्रल, दैट्स व्हाट दैट इज द टेट्राहेड्रल वायर, राइट। एंड दिस वन इज द जिसके 3 बॉल्स के एक बॉल प्लेस करते हैं, उसके बीच जो खालीपन है वायर है, दैट्स द टेट्राहेड्रल वायर। इन द केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वायर, वन दिस वन यहां पर जो बना था, दिस वन जिसमें सी लेयर की फॉर्मेशन की थी, दैट इज वे वी कैन से दैट ये जो बनता है हमारे पास ट्रायंगल से दिस ऐसे स्टार की फॉर्मेशन का वायर बनेगा हमारे पास, दिस इज कॉल्ड द ऑक्टाहेड्रल वायर। तो we can say that we have a 2 type of wires, tetrahedral and octahedral wires are there in the solid arrangement। अगर हम प्लेस लेके चलें 1 एटम के लिए हमेशा जो आपके टेट्राहेड्रल वायर्स होते हैं जी, वो हमेशा 2 होते हैं इन द 3D पिक्चर, एंड 1 एटम के लिए ऑक्टाहेड्रल वायर हमेशा 1 होता है। सो दैट इज द पिक्चर की अरेंजमेंट। अगर सिंपल वे से जाता हूं कि अगर मैंने क्या किया अपना इन दिस पे ABAB अरेंजमेंट जो लेके चलो, अगर मैं सिर्फ जो प्लेस किए, अगर मैं सिर्फ टेट्राहेड्रल वायर की फीलिंग करता हूं तो मुझे मिलता है एलिमेंट ABAB, और अगर मैं ऑक्टाहेड्रल वायर की फीलिंग करता हूं तो मुझे एलिमेंट मिलता है ABC। सो दैट इज स्टोरी रिगार्डिंग टू द डायमेंशन वी कैन से दैट, ठीक है ना, टेट्राहेड्रल वायर